Hello everyone. Hello everyone. Yeah, thank you and thank you so much for joining Stockit social platform. Okay. And I hope all right, happy Janmashtami to everyone. How are you all? Like just I hope you can hear me and let me just quickly share my screen with all of you. All right. So I hope my screen is visible. And today is the first session, ideally for Stockage Social, as in we start from the very basic of Stockage Social and we talk about the Stockage application, the free content which we do. So I'll try to cover today's session. I'll be taking around 10-15 minutes to explain Stockage Social and the rest of the part will be explained by my colleague Yash. Okay. और हम कोशिश करेंगे कि आज का जो सेशन है आई विल ट्राई टू मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑलराइट आई विल टेक अप द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग ये सारी चीजें मैं ले लूंगी नरेंद्र जी मैं आप सबको थोड़े धीरे धीरे बताऊंगी तो वी विल जस्ट स्टार्ट एंड प्रोसीड विद द सेशन लेट मी जस्ट सी quickly if my colleague have joined or not. Otherwise, I can start the session. All right. तो सबसे पहली बात है that you can see that I am there on the web platform of Stockage. So Stockage का जो facelift आप बोल सकते हो या फिर आप कह सकते हैं the new view which has come here. So it has come right here when you log into web.stockage.com. अगर आप new पे click करेंगे, you can also go back to the classic look which was the previous look. ठीक है? This is how you can switch to the platform. Now, the first thing which you all should importantly understand, और अगर आप सब मुझे confirm भी करें in the chat box, by helping me to know that, if you all have downloaded Stockage application and Stockage social application both. अगर आप लोगों ने अपने फोन पे ये एप्लीकेशन दो डाउनलोड नहीं किया है, so the first thing which you're gonna do is that you should download the Stockage social app and the Stockage app. Can I just know that a lot of people who are confirming, Nilesh ji, Sandeep ji and other people, उन्होंने कंफर्म किया है that आप सभी ने डाउनलोड किया है. Can I know is there anyone यहाँ पर कोई फ्रेंड है मेरे जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है? You can just write me just to understand that that whether this information was good for you or not. So can I know is there anyone who have not downloaded both the application? Okay. So I think like almost everyone have downloaded. That's amazing. All right. I'm sure like my department, that is customer delight team, have tried to reach you to give you a walkthrough if you're a Stockage Club member, because Stockage Club members get the walkthrough to the platform too. All right. So there is one person who mentioned, दिलीप जी अभी आपने डाउनलोड किया है, ग्रेट, थैंक यू. नरेश जी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज मैं उसे कवर करने वाली हूँ. ओके Okay, all right. So chaliye, I will just now, when Yash comes, he will try to explain the free, content which is ideally is accessible to anyone who download the application. But right now, I will take you to the Stockage social platform because that is something which I wanted to explain. So, देखिए आपको simply क्या करना है? When you are there on web.stockage.com, you will see this 9 dots. Okay, आप 9 dots को क्लिक करेंगे. The moment you click on the 9 dots, आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा. ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको स्टॉकेज वेब ऐप, स्टॉकेज सोशल ऐप एंड स्टॉकेज वेबसाइट का प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखेगा. The first thing which I wanted to take you all to the Stockage social platform. So इस तरीके से मैं Stockage social platform पे चली गई हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली Stockage social पे अगर जाना चाहती हूँ, I can simply type social.stockage.com. I hope this is okay. यहाँ तक आपको सबको समझ आया है in terms of how to switch from one platform to the other which is connected to your subscription. If this is clear, just type in Y as a yes or N for no. Amazing. Great. Thank you. So my colleague Yash has joined. So Yash, I will be just taking few minutes in terms of
explaining the Stockits social platform initially. And then from there, you can just take it forward. I'm just unable to, 1 second. Okay, so when I have come to the Stockits social platform, so what you all can see is, you will see here home, discover, book, now learn, right? Before I start proceeding with Stockits social, I would like to understand आप में से कितने लोग हैं जो कि स्टॉकेज में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, या फिर आपने प्रो लिया है, या फिर आपने क्लब लिया है। अगर आपने प्रीमियम लिया है तो आप प्रीमियम लिख सकते हैं, नहीं तो प्रो लिख सकते हैं। अदरवाइज you can just mention club so that I can understand. Okay, all right. So I could see the majority of here are kind of a combination of club and premium. Okay, no problem. There are pro users also. All right. तो अब मैं जो बताने वाली हूँ, it is very important for the premium member and the pro specifically. However, the feature which I will talk about right now is automatically a part of the club offering. ठीक है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी स्क्रीन की तरफ में ध्यान से देखेंगे, आप सभी। ओके, सो व्हेन आई लॉग इन टू स्टॉकेज सोशल, या फिर मैं स्विच करके भी आ सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन द 9 डॉट्स, या फिर मैंने social.stockage.com पे मैंने लॉग इन कर लिया है। ठीक है, जब मैं सोशल में लॉग इन कर ले रही हूँ, आफ्टर दैट आई विल बी सीइंग यहाँ पर मल्टीपल क्लब ग्रुप्स दिए गए हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, दैट स्वाति, can you suggest me that which are the clubs group which is available for us if I'm a premium या pro user? अगर आप प्रीमियम एंड या प्रो यूजर हैं तो आपके लिए एक क्लब ग्रुप ओपन है जिसका नाम है P2P लर्निंग ग्रुप, और अगर आप क्लब यूजर हैं तो आपके लिए सारे ये क्लब ग्रुप्स ओपन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रीमियम, आई विल एक्सप्लेन द प्रीमियम एंड प्रो के लिए। the one group which is open is it is P2P learning group. P2P learning group का मतलब क्या होता है? Peer learning. Very simple. So let's say if I am there on Stockage, you are on Stockage, around 120 people who have joined right now are all on Stockage. तो हम सब यहाँ पर जुड़ सकते हैं एज पियर लर्निंग की तरह, यानी कि मैं आपसे कुछ चीजें सीख सकती हूँ, या आप मुझसे कुछ चीजें सीख सकते हैं, या फिर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, या बाकी से भी पूछ सकते हैं। So this is all about the power of P2P learning group. Here you will be seeing that almost 35,000 active members are part of this group, right? और आप यहाँ पर काफी great information you will be able to see. तो जैसे कि यहाँ पे कोई प्रतीक शराब जी हैं, वो भी यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, सौरभ मिश्रा जी भी पोस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम। बट यस, यहाँ पर अगर आपको दिखता है कि समवन इज ट्राइंग टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन, तो वो आपका चॉइस होगा वेदर यू वांटेड टू फॉलो और नॉट। आइडली मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप किसी का भी स्टॉक रिकमेंडेशन P2P लर्निंग ग्रुप से लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल थॉट है, बट बाकी आप कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस, यू कैन जस्ट डेफिनेटली गेट कनेक्टेड हियर विद द पीपल। ऑल्सो आप देखेंगे कि कस्टमर डिलाइट टीम जो है वो यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशन पोस्ट करती रहती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर सून हियर टू मीट इन कोलकाता विद विवेक सर एंड विनय सर। हमारा एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है जिसके बारे में हमने यहाँ पर पोस्ट किया है। इट इज हैपनिंग ऑन 14th of September। तो ये इंफॉर्मेशन भी हम करते हैं। दिस इज द फ्री एंट्री फॉर एवरीवन, चाहे आप प्रीमियम यूजर हो, चाहे आप प्रो यूजर हो, या फिर आप क्लब यूजर हो, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पर फ्लोट करते हैं अंडर द P2P लर्निंग ग्रुप, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर द प्रीमियम एंड द प्रो यूजर, एंड ऑफ कोर्स क्लब यूजर के लिए भी ये ग्रुप अवेलेबल है। इफ दिस इज क्लियर तो आप मुझे Y एज ए यस लिखेंगे, नहीं है तो यू कैन राइट N फॉर नो, ताकि मैं आप सबके सवाल ले सकूं, and then I will proceed further to the different club groups which is a part of club offering.
There is someone who, Mr. CP is here with us. He's asking that track the market as in like you are Chandra ji. Your question is that are we going to learn on this call track smart money and all? No, 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 we are not going to do that. We're going to understand that what is this platform is all about. And if you're a club member, then how will you be able to track to the different calls which are given and how to do that? Abhijit ji, you will not be able to watch the live session of the seminar which is happening in Kolkata. But we are just trying to figure out a way that how can we record the entire session and can make it available for all the other family members. If let's say if you're not from Kolkata, so at least we will just try to figure out. We are trying to figure out, and hopefully we will be able to do that. Okay. Okay. So proceeding further. So are we all set? For the all the club members who have joined here, because आप सबका ध्यान अब मेरे स्क्रीन पे दोबारा होना चाहिए. Okay. So when you go to the StockX social platform, sir and ma'am, what you will see कि यहाँ पर आपके जितने भी क्लब ग्रुप्स दिए गए हैं, ये सारे क्लब ग्रुप्स आपके लिए अवेलेबल है. ओके. तो हम सबसे पहला ग्रुप पकड़ेंगे इन्वेस्टिंग आइडियाज. देखिए, इन्वेस्टिंग आइडियाज है, ट्रेडिंग आइडियाज है. स्वाति, बहुत ही क्लियर वर्ड है. ट्रेडिंग की आइडियाज आप दोगे, यानी कि स्टॉक आइडियाज दोगे, यहाँ पे इन्वेस्टिंग की आइडियाज दोगे. दिस इज वेरी क्लियर. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि स्वाति यहाँ पर किस तरीके का ट्रेडिंग आइडियाज दिया जाता है, या फिर इन्वेस्टिंग में तो आपको समझ आ रहा है, इट इज आइडली फॉर द लॉन्ग टर्म. सो हम आइडली यहाँ पर जो ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टिंग आइडियाज देते हैं, वी गिव यू रिलेटेड टू द स्टॉक. दिस आर द स्टॉक रिकमेंडेशंस which are given by the green tick people. Who are this green tick people? I will explain you little later. So first, can I take you all to the trading ideas? Okay. So when I go to the trading ideas, what do I see? That the green tick people are the one who are giving trade calls. तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि स्वाति, किस तरीके का ट्रेडिंग आइडियाज आप देते हो यहाँ पर? सो वेरी सिंपल यू इज दैट कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं रिलेटेड टू पोजिशनल, रिलेटेड टू स्विंग ट्रेडिंग, एफएनओ रिलेटेड हम यहाँ पर ट्रेड कॉल देते हैं. अगर आप मुझसे पूछते हो कि स्वाति आप इंट्राडे का यहाँ पर ट्रेड कॉल्स आप देते हैं क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं. वी डू नॉट गिव इंट्राडे कॉल्स आइडली बिकॉज वी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डू नॉट प्रमोट दैट इवन. सो इंट्राडेज के कॉल्स आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे. जनरली आपको स्विंग या पोजिशनल के ट्रेड कॉल्स मिलेंगे या फिर एफएनओ के कॉल्स मिलेंगे. तो किस तरीके का ट्रेडिंग कॉल है, जैसे मान लीजिए अंकित जायसवाल जो है, ही हैज गिवन समथिंग ऑन सूर्य रोशनी लिमिटेड के ऊपर में. अगर आप इसे क्लिक करते हो to see the details, you will be able to see that इसका time frame, you will be able to see the targets, you will be able to see the buying zone, you will be able to see the SL, that is stop loss कहाँ पे लगाना है. Okay, so this is how you will be able to see that under the trading ideas. So trading ideas and investing ideas के अंदर में हम आपको stock ideas देते हैं, यानी कि stock recommendation देते हैं. अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि this green tick people are the one who are giving you the stock recommendation. ये green tick होते क्या कौन है? So if I click on the discover button, see I have clicked on the discover button, this page will appear and you will see here market experts. Okay. So when you go to market expert, you will be able to see all the green tick people here if you click on the view all, right? So ये सारे लोग हैं जो यहाँ पर स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक आइडियाज देते हैं अंडर द इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग आइडियाज के अंदर, राइट? So now there can be a question in your mind. Let's say Abhijit ji has a question if he's a stockage club user. Swati, there are so many market experts, so I'm getting confused whom to follow, whom not to follow. ये आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन, राइट? सो वेरी सिंपल है, बहुत ही सरल इसका जवाब मैं आपको दे सकती हूँ. इज दैट कि सबसे पहले अभिजीत जी आपको क्या करना है कि इफ यू हैव जॉइन स्टॉकेज क्लब, तो सबसे पहले आपको 7 से 10 दिन you should try to observe and see. You should see all these green tick people. जो ट्रेडिंग, अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनके ट्रेड्स देखिए. अगर आप इन्वेस्टिंग रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो इन्वेस्टिंग के रिलेटेड आप ट्रेड्स के सारे ग्रीन टिक को देखिए. थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, 7 to 10 days ट्राई टू ऑब्जर्व, बिकॉज टाइम इज नॉट, it's not that you should not be in rush in terms of making money. Go little slow. 7-10 days में कुछ भी आपसे छूट नहीं जाएगा. So just try to see that 7 to 10 days
and see that how they participate into the market. उनके trade calls आपके style से match करते हैं कि नहीं, the way they are participating into the market और आप जैसे participate कर रहे हैं, whether this is matching or not, just try to observe. और एक बहुत अच्छा चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभिजीत जी एंड ऑल द क्लब मेंबर, दैट आप इन सब का रिपोर्ट कार्ड भी देख सकते हैं, that how they have been performing, which can give you more conviction. And to be very honest, we wanted to be very crystal and clear with all our club user, with all our members who have joined Stockage Social, because you're not just a subscriber for us, you're a part of this family. So we just wanted to be very clear and crystal in terms of giving you what actually has been conveyed here और उनके results कैसे हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं कैसे. I'll just show you. In the search button, I will write call summary. Okay. Sorry, I've given a space. That's why it did not work. So I will write call summary. The moment I write call summary, आपको ये call summary का hashtag दिख जाएगा, ठीक है? Now आपको click करना है add to search, and then I'll click on search button. The moment I click on the call summary, I will be able to see the report cards of each green tick people. Okay. So how often do we post this? We post this in every 15 days. So यानी कि अगस्त का रिपोर्ट कार्ड पब्लिश हो चुका है और बाकी का जो 30 डेज का पूरा अगस्त का रहेगा वो रिपोर्ट कार्ड, वो हम 1 सितंबर को पब्लिश करेंगे. सो फिर हम आपको मंथ में 2 रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करते हैं, 15 डेज पे और एक 30 डेज पे, because there are few trade calls जो followed होते हैं which is carried forward. So we're gonna show everything in this 2 time frame. So every month you will see the report card has been published like this. Okay. So I hope this is clear. I hope this is clear that you know how would you find out this thing. So अगर आपकी ये clear है तो मुझे please समझाइए why is a yes or N for no, because I want each one of you. Thank you Anupam ji, thank you everyone, thank you Dilip ji, Mohammed ji, thank you. So I'm just trying to go little slow because मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी चीजें आपको समझाऊं वो आपको समझ आए, ठीक है? So this is how you will be able to track. So इससे क्या होगा कि आपका लाइफ इजी हो गया कि मुझे किसे फॉलो करना चाहिए और उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है. यू विल बी एबल टू सी दैट. मैं दोबारा दिखा देती हूँ. सर्च में आप कॉल समरी में जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दिस हैशटैग, एंड देन आप इस तरीके से यू विल बी एबल टू सी द रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ एवरी ग्रीन टिक पीपल. ये सारे ग्रीन टिक पीपल, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि दे आर द पर्सन, they are the one who are a SEBI registered, either a SEBI registered or they are RA qualified. Okay. And, you know, they are the one who are recommending you the stock. Just give me a second. Okay. All right. So moving ahead, because I am a little short of time, so I have to pass to Yash. So I'll just have another 5 more minutes to explain Stockage social platform. तो मैं मेरी कोशिश रहेगी that मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊं. अब आता है कि डिफरेंट डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट सॉल्विंग क्लब यूजर्स एकदम आराम से. अब मोहम्मद जी आपको भी समझ आ रहा है कि मेरा कोई सवाल है तो मैं अपना डाउट को क्लियर कर सकती हूँ इन बाय गोइंग टू द डिफरेंट डाउट सॉल्विंग ग्रुप. अगर आपका डाउट फंडामेंटल का है यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है तो आप फंडामेंटल का क्वेरी फंडामेंटल में डालेंगे, टेक्निकल का सवाल है तो टेक्निकल में डालेंगे, एफएनओ का सवाल है तो एफएनओ में डालेंगे, करेंसी कमोडिटी का सवाल है तो करेंसी एंड कमोडिटी में, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना है हमें, दैट हाउ दिलीप जी की हाउ डू वी पोस्ट आवर क्वेश्चंस इन द डिफरेंट ग्रुप. तो आपके जितने भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप होंगे आपको सवाल एक ही तरीके से पूछना है जो मैं अब आपको सिखाऊंगी. तो आप सबका ध्यान दोबारा मेरी स्क्रीन पे. मैं टेक्निकल क्लब में हूँ, मेरा नाम स्वाति जायसवाल है और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है दैट आई एम देयर ऑन द टेक्निकल क्लब. ठीक है. नाउ इफ आई गो टू द टेक्निकल क्लब हियर, सो लेट्स से मेरा जो सवाल है वो मैंने यहाँ पर टेस्ट फॉर्मेट में एक बार टेस्ट लिख दिया. ठीक है. नाउ आई वांटेड टू आस्क अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक. तो आपको डॉलर साइन यूज करना है. द मोमेंट यू यूज डॉलर साइन आपको सेक्टर के डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाते हैं, पर मुझे सेक्टर नहीं, मुझे स्टॉक चाहिए. तो अभी मुझे करना है लेट्स से
अदानी के बारे में, अदानी पावर लिमिटेड। तो मैंने अदानी लिखा या फिर ADANE लिखा, कुछ कपल ऑफ लेटर्स लिखा, और आप देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड सारे स्टॉक्स यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गए हैं, राइट? सो यू हैव टू क्लिक, आई वांटेड टू क्लिक अदानी पावर लिमिटेड, सो दिस इज हाउ आई हैव सेलेक्टेड। सो ये हाईलाइट हो गया ब्लू कलर में, दैट मीन्स आई हैव सेलेक्टेड द स्टॉक प्रॉपर्ली। अगर आपको कुछ अटैच करना है, इमेज कुछ करना है, ये सारे सवाल को आप पोस्ट कर सकते हैं इन द डिफरेंट डाउट सॉल्विंग ग्रुप। अगर आप अपने सवाल टेक्निकल क्लब में पूछते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, ओके, एंड द मार्केट इज ओपन, तो आपको आपका सवाल केवल 5 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। इफ यू आस्किंग क्वेश्चन इन द फंडामेंटल क्लब, द क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा 24 to 48 आवर्स। इफ यू आस्किंग योर क्वेश्चन for F&O or currency and commodity, it is within 20 minutes during the market hours. And if the market is open, and if you have any question related to mutual fund, you will be getting the answer in 24 to 48 hours. दोबारा एक बार और दिखाती हूँ. So let's say this time I wanted to select a banking sector and I want to select bank also. So मैंने डॉलर दिया और मैं HDFC लिख रही हूँ. So I wanted to select HDFC bank. पर अगर मैंने डॉलर साइन दिया और स्पेस देके अगर मैं HDFC लिखूं तो कुछ नहीं होगा. सो प्लीज रिमेंबर, आफ्टर गिविंग द डॉलर साइन, डू नॉट गिव अ स्पेस, ठीक है? एंड नाउ आई वांटेड टू सेलेक्ट अ सेक्टर, तो मैंने सिर्फ डॉलर दिया है और यहाँ पर देखिए सारे सेक्टर्स आ जा रहे हैं. आई विल जस्ट सिलेक्ट बैंकिंग, वट एवर योर क्वेश्चन इज उसको थोड़ा इलैबोरेट करके लिखिएगा, सो दैट हेल्प्स यू टू गेट योर क्वेश्चन आंसर्ड. So this is all about how do you post your questions in the different social group. There is a question related, ki short-term trade, swing trades. हाँ, Mohammed ji, we have the trading ideas are related to that also, and F&O also. आनंद जी, ये मैंने जो आपको बताया है बाकी डिफरेंट क्लब ग्रुप्स के बारे में, वो क्लब यूजर्स के लिए है. दिलीप जी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू लाइक कि आपका ये पोर्टफोलियो है उस पे आप सजेस्ट मांगो, नहीं. तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, यू नो 1 second, 1 second, yeah. So Dilip ji, let's say like you have a question, for example, अगर मान लीजिए आपके मन में आता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका ब्रेकआउट लेवल आने वाला है, ठीक है? आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट देगा स्टॉक, तो आप किससे पूछोगे? फ्रेंड से पूछोगे? न्यूज चैनल खोलोगे? कुछ नहीं करना है आपको. आपको केवल टेक्निकल क्लब में जाना है और यहाँ पे आप पूछिए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में आई एम फाइंडिंग इट कि इसका ब्रेकआउट लेवल आना है या ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है. ये सारे तरीके का आप सवाल पूछ सकते हो. तो our analyst will give you the levels, for a confirmation, so you can ask all those questions. There is a question how to see the recording of today's session. It is very simple. अगर आपको recording देखना है तो ये सारे जो sessions होते हैं Monday to Saturday, excluding Friday, ये सारे सेशन आपके स्टॉकेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाते हैं. अदरवाइज आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ऐड टू सर्च, एंड देन आप कस्टमर डिलाइट हैंडल आप देखेंगे, फिर क्लिक करेंगे ऐड टू सर्च, एंड देन सर्च बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सी ऑल द पास्ट रिकॉर्डिंग्स. और अगर आपको इसको सेव करना है, आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन एड बुक मार्क, और आप इसे सेव कर सकते हैं टू वॉच लेटर. Viral ji, as I said towards the start of the session, the premium and the pro user only have the access to the P2P learning group where you can learn from your peer only. But if you wanted to ask a question, wanted to get a stock recommendations, these are only available to the Stockage Club member. But that doesn't mean I am telling you or pushing you to be a club member on a very first day. No worries, take your time, आराम से कीजिए, आपको अच्छा लगे, then you switch to club. I think now I can ask Yash to take it forward from my side. Hey Yash, I'm really sorry. I just took additional 2 more minutes. I was just trying to complete as much as possible. So Yash, yeah, over to you so that you can take up the rest of the feature, please. Okay.
Hello everyone, wish you all a very good evening and happy Janmashtami. This is Yash Saraf from the Stockage Data team, Stockage Product team. So today basically we'll be learning in this smart session that how we can track the movement of money and how we can track updates from Stockage. Like what are the key updates that we should track from the market updates, from our how we can track our watch list, how we can enhance our research and analysis via tracking our watch list and tracking our portfolios, right? So let's start without wasting any more time. So basically ये जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हो, this is the न्यू यूएक्स डिजाइन ऑफ द स्टॉकेज, जो आप लोग अभी जस्ट स्वाति जी ने आप लोग सबको बताया कि दिस इज द न्यू डिजाइन। एंड अगर कोई भी जिसको अपने जिसको ओल्ड डिजाइन में वापस जाना है, दे कैन मूव बैक टू दी ओल्ड डिजाइन। यहाँ पे न्यू सेक्शन में क्लिक करके आप अपने वापस क्लासिक लुक में जा सकते हो। सो अभी हम लोग न्यू लुक पे ही स्टिक करेंगे एंड हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द मार्केट होम, राइट। अब बेसिकली आप अगर आप मार्केट्स में हो तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सिर्फ 9:15 to 3:30 है, राइट। मार्केट्स तो ऑन गोइंग रहती है एंड जस्ट जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो 9:15 to 3:30 के बीच में होता है। बट जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी तो हो ही रही है, कोई ना कोई न्यूज तो आ ही रहा है, राइट। तो उन सबको भी तो ट्रैक रखना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर द मार्केट आवर्स, क्योंकि उसका जो भी इम्पैक्ट होगा ना वो नेक्स्ट डे आएगा या इन द कमिंग डेज आएगा। सो इसीलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि हाउ वी कैन ट्रैक द अदर अपडेट्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स एंड ऑल्सो आफ्टर द मार्केट आवर्स। ठीक है। सो ये बेसिक्स आपको स्क्रीन है। यहाँ पे अगर आप मार्केट आज के बीच में हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीवियस डे का जो एफआई का कैश इनटेक है एंड ऑल। एंड आपको जो करंट निफ्टी और सेंसेक्स का जो इंट्राडे प्राइसेस है वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। बट एज यू कैन सी अभी मार्केट्स ऑफ है, मार्केट्स बंद हो चुके हैं, तो आपको अभी यहाँ पे निफ्टी का सेंसेक्स निफ्टी का वैल्यू दिख रहा है, क्लोजिंग प्राइस। आपको अभी सेंसेक्स का क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है। साथ ही साथ आज का जो 26 का जो एफआई का कैश इन्वेस्टमेंट है वो भी आ चुका है। तो आप देख पा रहे हो कि आज एफआई ने 483 करोड़ का बाइंग किया है, नेट बाइंग किया है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर नेट में 483 करोड़ का बाई किया है। सेम गोज विद डीआई कैश मार्केट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड्स हो गए और जो बाकी फैमिली हाउस है, जो बड़े बड़े हाउसेज है, वो हो गए, उन्होंने 1870 करोड़ का बाई किया है। व्हाट वी कैन अज्यूम फ्रॉम दिस कि अगर आप ये चीज देखोगे कि डीआई, अगर आप डीआई का ट्रेंड आप काफी दिन से देखोगे तो देन आपको समझ में आएगा कि डीआई तो काफी दिन से ही नेट में बाई में है। क्योंकि आप लोग सबने ये न्यूज सुना होगा कि काफी ज्यादा एसआईपी ना फ्लो इन हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली चार्जिंग अप एफआईज पैसा निकाले। बट आप देखोगे कि कुछ टाइम से फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू डेज एफआईज भी वापस से अपना पैसा पंप इन कर रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से एक मार्केट में बहुत एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। एंड एज यू ऑल मस्ट बी नो निफ्टी ने 25,000 भी क्रॉस किया है अगेन। ठीक है। तो एफ आई डी आई का एक्टिविटी जो है ना, व्हाट वी से कि एफ आई डी आई का जो मूवमेंट है कि इधर दे आर परचेजिंग और इधर दे आर सेलिंग ऑन नेट टू नेट बेसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक। तो इससे अभी जैसे 26 आज का सिर्फ एफ आई डी आई का कैश मार्केट डेटा अभी तक अपडेट हुआ है। अभी तक एफ आई का डेरिवेटिव डेटा अपडेट नहीं हुआ है, जैसा आप 23 अगस्त का देख पा रहे हो। एक बार वो भी अपडेट हो जाएगा एंड आप लोग बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिसीव करोगे कि स्टॉकेज का यूडी प्रोसेस हो चुका है। तो सेम वे में आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सीएम का प्रोविजनल डेटा देख रहे हो। ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखेगा कि 16 अगस्त को बाइंग किया था एफआईज ने, फिर 19 अगस्त को काफी ज्यादा सेलिंग था, उस दिन मार्केट्स भी एकदम फ्लैट थी। उसके बाद कंपेरेटिवली 19 अगस्त से 20 अगस्त में एफआईज ने कमती सेलिंग किया, तो मार्केट्स और ज्यादा बढ़ी। फिर और कमती सेलिंग आया, फिर मार्केट्स उस दिन भी ज्यादा बढ़ी, उसके बाद से फिर एफआईज ने बाई करना चालू किया। तो अब देख सकते हो कि कैसे कैसे निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट आ रहा है। सो एफआईडीआई के एक्टिविटी के साथ आप जब निफ्टी के मूवमेंट को आप ट्रैक रखोगे ना, देन यू विल एम टू सी कि क्या कोरिलेशन पे काम हो रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन पे काम हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेट करने का कि एफ आई डी आई की जो भी मूवमेंट हो रही है उससे निफ्टी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर एफ आई बाइंग करिए तो निफ्टी भागेगा ही भागेगा, या एफ आई सेल करिए तो निफ्टी नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बट इट हेल्प्स अस टू सेट अ सेंटिमेंट कि मार्केट में अभी सेंटिमेंट क्या है। अभी हम लोग सबको पता है कि इंडियन मार्केट्स में रिटेल बहुत ज्यादा ओवर पावर करके रखे, इसलिए एफ आई का उतना वैल्यू नहीं है। बट ये नहीं कि एफ का एकदम भी वैल्यू नहीं है, एफ का आज के दिन भी इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। ये हो गया सीएम सेबी का डेटा।
सीएम सेबी का डेटा इज कि एफआई एक्चुअली कैश मार्केट में कल उन्होंने क्या किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को ये बताऊं, सीएम प्रोविजनल का जो डेटा ये आपको जो देख रहा है 1944 करोड़, जो फ्राइडे का डेटा था, ये प्रोविजनल डेटा था, मतलब इट वाज नॉट द एक्चुअल डेटा। बट आप जब सीएम सेबी में जाओगे तो सीएम सेबी में क्या होता है कि सेबी वाला डेटा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे रिलीज करती है। ठीक है, तो 23rd के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आज है, तो आज सेबी ने ये डेटा रिलीज किया है कि 23rd को नेट जो बाइंग हुआ था एफआई का, वो 1944 करोड़ नहीं था, वो 3500 करोड़ था। आप ये डिफरेंस देख रहे हो, 1600 करोड़ का डिफरेंस है जो एक्चुअल में बाइंग हुआ। क्यों? क्योंकि आफ्टर ये जो 1944 करोड़ है, ये एज ऑन मार्केट में आज के दिन जो भी ट्रेडिंग हुई उसका एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। बट आफ्टर क्लियरिंग और सेटलमेंट्स एंड जितनी भी एडजस्टमेंट्स एंड क्लियरिंग सेटलमेंट होती है, उसके बाद जो एक्चुअल फिगर निकलता है विच इज दिस। सो एज वी कैन सी कि 23rd अगस्त, दैट वाज ऑन फ्राइडे, उस दिन एफआई ने 3500 करोड़ का बाइंग किया था, विच इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, सेम गोज विद एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी। एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी के अंदर ये जो डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट पे हम लोग हर 15 डे बेसिस पे हम लोग के पास ये डेटा आती है कि हम लोग ये डेटा अपडेट करते हैं कि एफआईज जो है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, वो ये जो आप सारे सेक्टर्स देख रहे हो, इन सारे सेक्टर्स के अंदर एफपीआई का नेट पोजीशन क्या रह रहा है, क्या वो नेट बाइंग कर रहे हैं कि नेट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त से 15 अगस्त 2024, ये जो 15 डे का जो फोर्टनाइटली डेटा है, इस 15 के अंदर एज यू कैन सी कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एफपीआई ने 3400 करोड़ का बाइंग किया है, 3400 करोड़ का नेट बाइंग किया है। एज वी कैन, अगर हम लोग उसको स्क्रोल करेंगे तो व्हाट वी कैन सी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर एफपीआई ने इस 15 दिन के पीरियड में -15,000 करोड़ का सेल किया है। तो मतलब क्या है, इससे हम लोग एक सेक्टर आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है। मैं आप लोग को नोट बता दूं कि स्टॉकेज के अंदर जो सेक्टर क्लासिफिकेशन है दैट इज डिफरेंट, एंड ये जो आपको यहाँ पे सेक्टर एक्टिविटी दिख रहा है दिस इज डिफरेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सचेंज से आ रहा है, उनका अपना एक प्री रिक्विजिट सेट स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे वो लोग क्लासिफाई करते हैं। तो आप लोग इन दोनों को कोरिलेट ना करें, बस आपको इस सेक्टर का आइडिया लेना है कि हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एफपीआई ने 3500 करोड़ का बाइंग किया है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 15,000 करोड़ का सेलिंग किया है। अब आप देखोगे इसका भी ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 2.5 महीने से, लाइक जून के मिड से, आप देखोगे एफपीआई हेल्थ केयर सेक्टर में कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। पहले 413 करोड़, फिर 2900 करोड़, फिर 2400 करोड़, फिर 2700 करोड़ एंड अब 3500 करोड़। तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स को उठा के देखोगे तो आपको हो सकता है कि उसके अंदर एक रिस्पेक्टिव को रिलेटेबल मूवमेंट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस एफपीएस सेक्टर एक्टिविटी। अगर आप लोग मोमेंटम प्लेयर है या अगर आप लोग पोजिशनल या स्विंग प्लेयर है, सो दिस डेटा कैन बी वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग व्हिच सेक्टर्स आर गोना प्ले और गोना हैव अ इम्पैक्ट इन द कमिंग डेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर का बात करूं, तो आप देख रहे हो कि हेल्थ केयर सेक्टर में ये इतने दिन से बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसी को कोरिलेट करने के लिए मैं अगर निफ्टी फार्मा को चेक करूं, निफ्टी फार्मा 1 मंथ, हम लोग 1 मंथ 3 मंथ देखते हो अप्रोक्स, तो अब ये देख सकते हो कि अगर मैं एक्चुअल किसी सेक्टर का बात करूं तो आफ्टर निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो 3 सेक्टर में है उसका बात है, अगर निफ्टी फार्मा जो है इसने 17% का मूवमेंट दिया है, दैट इज 17.4% का इसने लास्ट 3 महीने में मूवमेंट दिया है। ठीक है, वेयर एज अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे जिसमें सेलिंग आ रही है उसमें 7.6% का, मतलब अभी आप ये चीज चेक करोगे कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उसके अंदर में एफपीआई ने अभी रिसेंटली ही सेलिंग करना चालू किया है। ये पहले इतना ज्यादा भागा हुआ था कि अब एफपीआई अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट फार्मा के अंदर दे आर कंटिन्यूअसली बाइंग एंड इसमें आप देख सकते हो 17.4% का मूवमेंट ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, निफ्टी आईटी का, so you can see I can as far as I can recollect from the data कि निफ्टी फार्मा इज द सेकंड मोस्ट गेनर सेक्टर इन द लास्ट 3 मंथ्स। अगर आप ये डेटा देखोगे तो सी, डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप जब डेटा को को रिलेट करना चालू करोगे देन आपको अपने आप आपको उस डेटा के रिजल्ट दिखेंगे। नाउ वी लेट्स कम टू डेरिवेटिव सेक्शन। डेरिवेटिव्स के अंदर ये जो आपको डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा है एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस वाला, एंड आज का ये अपडेट हुआ नहीं अभी तक, इससे आपको 23rd अगस्त का डेटा दिख रहा है। इसमें भी आपको समझ में आएगा कि एफपीआई या एफआई जो है वो किस बेसिस पे अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडेक्स के अंदर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का बात कर रहे थे, तो अब ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर ऐसा कुछ खास उसके अंदर बाइंग नहीं आया हुआ है। ऑप्शंस के अंदर दे हैव कंटिन्यूअसली सेल्ड। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर इफ यू सी
कि आप ये देखोगे कि कंटिन्यूसली वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, ऑन नेट बेसिस पे ऑप्शन कंटिन्यूसली सेल कर रहा है, तो आपको ये दिख जाएगा कि दिस डेटा इज कोरिलेटिंग विद द एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी डेटा। ठीक है, तो इसलिए डेटा का जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सही टाइम पे डेटा को ट्रैक रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एफपीआई सेक्शन। अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग को और अपडेट्स ट्रैक रखना है तो हम लोग कैसे ट्रैक रख सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस पे। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो गया ड्यूरिंग द मार्केट आज, ट्रेंडिंग ना हो गया कि कौन कौन से स्टॉक्स कुछ नया कुछ मूवमेंट करे ड्यूरिंग द मार्केट आज, जैसे ये सारे स्टॉक्स है, क्वेस कॉर्प ने आज एक नया 52 वीक हाई बनाया। क्वेस कॉर्प ने आज एक नया 52 वीक हाई बनाया। ठीक है, यूटीआई ऐसे मैनेजमेंट ने कि आज एक नया अपना 52 वीक हाई बनाया, तो ऑब्वियसली दी स्टॉक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली, जो अपना नया 52 वीक का हाई या नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। इन ये सारे स्टॉक्स को कल ऑब्वियसली आपको ट्रैक रखना चाहिए। हो सकता है कि इन स्टॉक्स के अंदर कल कंटिन्यूड मोमेंटम आए, कंटिन्यूड मूवमेंट आए, या हो सकता है कि इन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग भी आ जाए। दीज आर दी की न्यूज एंड अपडेट्स जो अभी आज आई है, जैसे शिल्पा मेडिकोर है सक्सेसफुली कंप्लीटेड फेज 6 क्लिनिकल स्टडीज। तो अगर ये न्यूज मार्केट आज के बीच में आ चुकी होगी तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आज आ चुका होगा। बट कई बार क्या होता है ना कि मार्केट आज के बीच में कोई न्यूज आती है तो उस समय एक टेम्पोररी रिएक्शन आता है मार्केट का, एक टेम्पोररी मूवमेंट आता है इधर ऑन अ पॉजिटिव साइड और ऑन अ नेगेटिव साइड, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज। बट कई बार होता है कि आफ्टर मार्केट आज जब मार्केट के प्लेयर्स उस न्यूज को एनालाइज करते हैं एंड उस न्यूज की ग्रेविटी को समझते हैं, डेंसिटी को समझते हैं कि नहीं ये न्यूज बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है या ये न्यूज बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है, तो उसके बेसिस पे भी कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट डे इन द कमिंग डेज उसके अंदर वो कंटिन्यूड मोमेंटम आता है। ठीक है, जैसे आज भेल को 11,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। ठीक है, तो अब हो सकता है कि उस समय जो 11,000 करोड़ के लेके जो मूवमेंट आना था वो आया, बट इस 11,000 करोड़ का जो मूवमेंट आया, जो 11,000 को ऑर्डर मिला, ये कैसे मार्केट को, कैसे भेल के बुक्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो 11,000 करोड़ कब रिसीव होगा, कैसे कब उसका एक्चुअली वो अर्न होगा, या कब वो एक्चुअली कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में दिखा पाएगी, उसको सब एनालाइज करने के बाद उसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो आपको कल आपको पता चलेगा। तो इसलिए न्यूज भी ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दीज आर द की मार्केट इवेंट्स की कॉर्पोरेट एक्शंस कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर है आज, डिविडेंड है एंड ऑल, अपकमिंग रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो कि कल कौन कौन से स्टॉक्स रिजल्ट्स देने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे स्टॉक्स जितने भी है उन्होंने अपना जून क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश कर चुका है। देर हार्डली एनी स्टॉक्स जो बहुत जो अभी रिजल्ट्स रिलीज करेंगे। देन दिस इज द रिलीज रिजल्ट सेक्शन, कि इसके अंदर इससे आपको उन स्टॉक्स का डेटा मिलेगा जो रिलीज अपना रिजल्ट रिलीज कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू भी आप कोई ना कोई ऐसे स्टॉक निकाल सकते हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा रिजल्ट पब्लिश किया है। फॉर एग्जांपल आप ये एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी ईडीसी देख सकते हो, इसने एक अच्छा रिजल्ट पब्लिश किया है। नेट प्रॉफिट इसका माइनस में है, मतलब ऑब्वियसली ये माइनस से इसके लॉस थी, बस ये लॉस से कंटिन्यूसली ग्रो किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है तो नेक्स्ट क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है, और नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि कंपनी कैन बी इन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन। तो यहाँ से आप लोग जो रिजल्ट्स आ चुके हैं आप उनको ट्रैक रख सकते हो। ये हो गए डील सेक्शन जो अपडेट हो जाएगी आज की डील्स के साथ। यहाँ पे आप एक्चुअली जो की डील्स आज हुई है उसको ट्रैक रख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर कोई बहुत मेजर डीलिंग हुई है, या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या किसी बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक के अंदर कोई सेलिंग की है या बाई की है, जैसे जीक्यूजी पार्टनर्स ने अंबुजा सीमेंट्स की इतनी क्वांटिटी शेयर्स परचेज की थी एट दिस रेस्पेक्टिव प्राइस। ठीक है, तो आप इन सब के बेसिस पे आप ट्रैक करके आप चेक कर सकते हो कि उन स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट आ रहा है। या दिस इज द सेक्टोरल परफॉर्मेंस। आज आपको ये समझ में आ रहा है कि एज ऑन टुडे, आज एज ऑन दिस डेटा इज एज ऑन 23rd, तो ये जो डेटा है एज ऑन फ्राइडे तक ये एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा भागा हुआ था। ऑन फ्राइडे दैट वाज 3.5%। तो आपको इसे सेक्टर का व्यू भी मिल जाएगा कि उस दिन पे, जैसे आज आफ्टर ईओडी ये सेक्शन अपडेट हो जाएगा एंड आज जिन सेक्टर्स ने आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो डेटा आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेक्टर है जो आज सबसे ज्यादा लाइमलाइट में थे, सबसे ज्यादा मूवमेंट में थे, एंड क्या आर दो सेक्टर्स केपेबल एनफ कि वो मोमेंटम कल वापस से कंटिन्यू हो। ठीक है, दिस इज द आईपीओ सेक्शन कि जहाँ पे आपको आईपीओ के बेसिस पे आपको इनसाइट्स मिलेगी एंड आईपीओ लिस्टिंग, और या कौन कौन से ऑनगोइंग आईपीओस है या अपकमिंग आईपीओस है, यहाँ से आपको उस सेक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। एंड दिस दिस इज द लर्निंग सेक्शन।
अब दिस वाज अ बेसिक आइडिया अबाउट कि हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है क्या अपडेट्स हो रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो लोग अनाउंसमेंट्स को ट्रैक रखते हैं, ठीक है, जो लोग भी अनाउंसमेंट्स को ट्रैक रखते हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत जरूरी है। दिस इज द कंपनी फाइलिंग सेक्शन ऑन अ डेली बेसिस। ये आज का टॉपिक का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बताना चाहता हूँ कि कंपनी फाइलिंग्स क्यों जरूरी है। कंपनी फाइलिंग्स इसलिए जरूरी है कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, अगर आज वो लोग मार्केट में एक भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, मतलब ABCD एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अगर वो लोग एक नया ऑर्डर कर रहे हैं, अगर वो लोग एक नया प्लान बिठा रहे हैं, अगर उनका मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अगर वो लोग कोई कंपनी फाइलिंग कर रहे हैं, अगर उनका कोई लॉस हुआ है, A to Z each and every activity company is obligated, each and every company or security is obligated to report to the exchange। ठीक है, उसमें से कई सारी एक्टिविटीज जो होती है वो नॉन प्राइस सेंसिटिव होती है, जिससे प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन कई सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसपे प्राइस का इम्पैक्ट आता है, दैट आर प्राइस सेंसिटिव एक्टिविटीज या प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो वो कंपनीज रिपोर्ट करती हैं, जैसे ही कंपनी उस एक्सचेंज में रिपोर्ट करती है उसको लेके भी मार्केट रिएक्ट करती है। सो इसके लिए आपको ये ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट है जो आफ्टर मार्केट आई है या आज ड्यूरिंग मार्केट आई, जिसका एक इम्पैक्ट कल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्विजिशन अनाउंसमेंट में आ रहे हो, तो हम लोगों ने कंपनी फाइलिंग में क्या करके रखा है, डिपेंडिंग ऑन दी अनाउंसमेंट अलग अलग कैटेगरीज की हम लोग ने उसको कैटेगराइज करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ये देख रहे हैं कि 26 को आज इन तीन कंपनी के अंदर अनाउंसमेंट आया। ऑब्वियसली दिस इज ML ड्रिवन, हम लोग ये मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं। तो जैसे एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सोल्यूशन में मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर कोई अनाउंसमेंट आया है, तो मैं इसमें चेक कर सकता हूँ, मैं इसको रीड कर सकता हूँ कि इसमें क्या ये कंपनी क्या एक्वायर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी एक दूसरी कंपनी का परफेक्ट ऑक्टेव का 76% इक्विटी स्टेक एक्वायर करी है। तो अगर इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी, देन मैं इसमें और फर्दर इसमें जाके रीड करके कि वेदर दिस एक्विजिशन विल एक्चुअली एक्ट एज अ सिनर्जी, क्या इस एक्विजिशन से इस कंपनी को कुछ बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली उसके प्राइस में रिएक्शन आएगा एंड उसको केटर किया जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। या आप ये सोच सकते हो कि आज कोई ऐसी कंपनी है जो जिन्होंने अपना कोई बोनस अनाउंस किया है या बाईबैक अनाउंस किया है। फॉर एग्जांपल, आरती ड्रग्स ने आज ही एक कॉर्पोरेट एक्शन बाईबैक अनाउंस किया है। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आरती ड्रग्स में अंदर आज 900 रुपीज का बाईबैक, 900 रुपीज पे बाईबैक ऑर्डर अनाउंस किया है फ्रॉम अ टेंडर ऑफर। तो ये सारी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इनका तुरंत इम्पैक्ट आता है प्राइस पे। एंड अब इन सबको ट्रैक करके आप एक हेल्दी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक कोई कंपनी अगर बाईबैक अनाउंस करती है एंड वो स्टॉक अगर अपने बाईबैक प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप उसमें ऑब्वियसली अपना पोजीशन बना के डिपेंडिंग एंड रीडिंग एंड कंसल्ट आफ्टर कंसल्टिंग टू योर रजिस्टर्ड एडवाइजर है, आप खुद अपने श्योर होके आप उसको उस कंपनी के अंदर एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी गैदर कर सकते हो कि आप उस कंपनी में बाई कर लिए एंड उसके अंदर फिर आप उस कंपनी के टेंडर ऑफर में या बाईबैक ऑफर में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप मार्केट में ट्रैक रखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म ट्रैक रखने के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के आपको कई सारी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी बोनस अनाउंस कर रही है, तो अगर आप बोनस अनाउंस करिए अगर आपको उस बोनस का इम्पैक्ट का फायदा उठाना है, देन आप ऑब्वियसली आप उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रैक रख सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपनी फाइलिंग्स। अब हम लोग आते हैं माई सेक्शन पे, जिसमें हम लोग माई वॉच लिस्ट एंड माई पोर्टफोलियोज के थ्रू हम लोग ट्रैक रखेंगे कि हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर आप लोग ने अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया, तो वॉच लिस्ट का बहुत सारा इंपैक्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई स्टॉक देख रहे हो कि कोई स्टॉक किस दिन भाग रहा है, या आप लोग कोई स्टॉक को ट्रैक रखना चाहते हो कि ये स्टॉक आपने कहीं पे पढ़ा और आपको ट्रैक रखना है कि वो स्टॉक एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आपने एज सून एज आपने किसी स्टॉक को ट्रैक किया या इसमें यहाँ पे ऐड किया, तो जिस दिन आपने ऐड किया उस टाइम पे जो प्राइस चली थी उस प्राइस को वो रिकॉर्ड करके यहाँ से आपको हमेशा के लिए उस दिन तक का, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत वायर रोप्स मैंने 16 मार्च 2021 को ऐड किया था इस वॉच लिस्ट के अंदर, दैट इज 1259 डेज बिफोर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स। अब ये देख सकते हो कि उस दिन जिस दिन मैंने ऐड किया था उस दिन से लेके आज तक इस कंपनी के अंदर जो मूवमेंट आ चुका है दैट इज 548%। तो मेरे को कोई स्टॉक्स को ट्रैक रखना है एंड मेरे को उसको लगता है कि नहीं, मेरे को इस स्टॉक को ट्रैक रखे व्हेन आई फील द राइट अपॉर्चुनिटी और राइट टाइम इज देयर, मेरे को स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, फिर मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को ऐड करने का क्या फायदा होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एज इंसाइट्स मिलती है कि आपकी वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स है
उन सब के अंदर कोई मेजर इवेंट तो नहीं हो रहा, कोई मेजर टेक्निकल इवेंट या कोई मेजर फंडामेंटल इवेंट या कोई भी मेजर एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो हम लोग की एज इंसाइट्स कैप्चर करती है, तो आपको वो चीज यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कि जैसे इन्फीबीम में इंक्रीज, IRS इंक्रीज हो रहा है, किर्लोस्कर के अंदर हाई वॉल्यूम में डिलीवरी आ रही है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ये डेली बेसिस पे अपडेट होती है। यहाँ पे आपकी वॉचेस के अंदर कौन से स्टॉक्स है जो गेनर साइड पे है, कौन से स्टॉक्स है जो लूजर साइड पे है। ठीक है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। आपकी जो वॉचेज में स्टॉक्स है उसमें डिलीवरी का क्या ट्रेंड हो रहा है, कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि आपने कोई किसी स्टॉक को ऐड किया है ना, उसको आप चेक कर रहे हो, अचानक से आप देख रहे हो कि अचानक से उस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा डिलीवरी वैल्यू आ गई कंपेयर टू इट्स प्रीवियस 5 डेज, राइट। तो आप वो डिलीवरी के बेसिस पे रख सकते हो, हो सकता है कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट अभी चालू होगा या होने वाला है। सेम गोज विद टेक्निकल, आप यहाँ पे टेक्निकल्स चेक कर सकते हो हर एक स्टॉक का जो आपके वॉचेस में ऐड है, कि कौन से स्टॉक्स अपने लो से रिबाउंड करी, या कौन से स्टॉक्स हमने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। जैसे मेरे को क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखो मैं इन स्टॉक्स ऐड करके रखा हूँ, तो व्हाट आई कैन सी इज साइजर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑलमोस्ट नियर टू इट्स 52 वीक हाई। ठीक है, इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट इज 1098.95। ये जो स्टॉक है सैलजर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका LTP 1097.20। मतलब इट इज वेरी एविडेंट कि आज स्टॉक ने या तो अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, या वो कल एक नया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे सकती है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आज एक बेसिक क्लियर कट मेरे को एक डेमोग्राफिक व्यू में मेरे को एक आइडिया लग गया कि कौन से स्टॉक्स अपने ऑल टाइम लो या ऑल टाइम हाई के पास ट्रैक रख रहे हैं, 52 वीक हाई, 52 वीक लो के पास ट्रैक रख रहे हैं। ऐसे में EMS में भी मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से स्टॉक्स के अंदर EMA SMA का क्रॉसओवर आ रहा है या पाइवट पॉइंट्स का मूवमेंट है। सेम गोज विद दी अदर इंडिकेटर्स, सेम गोज विद यहाँ पे अदर इंडिकेटर्स पे आ जाती है कि कौन से स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है, एंड व्हाट्स एवर इट इज। कौन से स्टॉक्स के अंदर चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10-15 स्टॉक आप ट्रैक रख रहे हो एंड किसी स्टॉक के अंदर कोई बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो आप उसको ट्रैक रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लोकेश मशीन्स के अंदर 24 जुलाई को एक ही ट्रैक हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक यहाँ से, इस स्टॉक में जैसे ही अपना ही नीचे का सपोर्ट जोन तोड़ा, वो यहाँ से नीचे गया है। तो अगर आप इसमें एंट्री नहीं लेते, अगर आपने ये एक्टिविटी ट्रैक की होती, तो यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स का स्कैन समझ में आ जा रहा है, एज रिपोर्ट मिल जा रही है आपको सारे के सारे स्टॉक्स का, कि कौन से स्टॉक्स के ऊपर स्टॉकेज की जो इन हाउस रिसर्च टीम है वो कैप्चर करी है, कोई नया रिपोर्ट्स लेके आ रही है। सबसे बेस्ट पार्ट आता है कि अगर कोई रीसेंट न्यूज आया है इन सारे स्टॉक्स में, या अनाउंसमेंट्स आया है, तो आपको न्यूज अनाउंसमेंट सब आपको यहीं पे दिख जाएंगी, एक्शन आपको सारी यहीं पे दिख जाएंगी, कि किस स्टॉक के अंदर कोई डिविडेंड है या ऐसा कुछ डिविडेंड, जैसे सैलजर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिविडेंड आने वाला है 2.5 रुपीज पर शेयर। आपकी जो वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है उसके अंदर कोई रिजल्ट है कि नहीं, अपकमिंग रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यानी उन स्टॉक्स के अंदर कोई डील्स हुआ है कि नहीं हुआ है अभी हाल फिलहाल में। जैसे हम देख सकते हैं CMI के अंदर अभी बल्क डील्स हुई है इसी महीने के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक और वॉच लिस्ट, एंड यू कैन गेन इनसाइट्स फ्रॉम वॉच लिस्ट। अब जैसे वॉच लिस्ट बहुत तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अपने इंडियन मार्केट्स में क्या होता है कि आप किसी भी ऐसे इन्वेस्टर से मिलोगे या ट्रेडर से मिलोगे जो मार्केट में फुल टाइम है, या कोई आपसे पूछता है, या आपको कोई आपको टिप्स देता है, या कोई आपको एडवाइस देता है, तो जैसे आपने आपको किसी ने एडवाइस दिया कि ये स्टॉक उठा लो जो आप मार्केट में चलता है, तो अगर आपको किसी का आपको वो चेक करना है, ट्रैक करना है कि किसी और का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप उसके नाम पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कि हाँ इस बंदे ने मुझे ऐसे ऐसे स्टॉक्स दिए थे, एंड इस दिन पे दिए थे। तो आप जिस दिन पे आपने, फॉर एग्जांपल आपने विवेक बजाज सर का कोई वॉचेस बनाया, एंड विवेक बजाज सर के नाम से आपने वॉचेस बनाया, वो जब जब कोई स्टॉक आप वो स्टॉक का कॉल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, या कोई स्टॉक का एडवाइस आता है, तो आप उसके बेसिस पे आप उसको ट्रैक रख सकते हो कि हाँ इस दिन पे ये स्टॉक का एडवाइस आया था ना, उस दिन से इस दिन तक ये मूवमेंट आ चुका है। तो उससे क्या होता है, आपको आपको और अपने आप भरोसा हो जाएगा कि कुछ भी जो भी मूवमेंट आ रहा है वो आपके हाथों और ट्रैक्स पे है, एंड विद इन क्लिक्स आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड यू कैन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस। ठीक है, दिस वाज रिगार्डिंग द माई वॉच लिस्ट। अब एक और लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हम लोग माई पोर्टफोलियोज के थ्रू करेंगे, तब तक हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम लोग ट्रैक रखते हैं। जय श्री कृष्ण सर। दिनेश कुमार जी, ETF की जो लिस्ट है वो ETF म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है। वो हम लोग इस एप्लीकेशन में हम लोग ETFs को म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, नॉट इन स्टॉक्स। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाके देखोगे तो आपको वहां पे वो ETF की लिस्ट आपको मिल जाएगी। मोहन लक्ष्मणन जी, FPI इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स।
रश्मि गांधी जी, यस, अगर हेल्थ केयर सेक्टर में एफआईडीआई बाइंग कर रही है, मतलब एज ऑन डेटा की एफआई और एफआईज, मैं एफपीआईज का बात कर रहा हूँ। अगर हेल्थ केयर सेक्टर वो जो डेटा दिखा था, इट वाज ओनली फॉर एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो एफपीआईज आर वेरी बुलिश इन द फार्मा सेक्टर, एज वी कैन सी इन दी डेटा, जैसे मैंने आप लोगों को डेटा में दिखाया। और नवनीत ग्रोवर जी, अगर आपको डीआई की इन्वेस्टिंग को ट्रैक रखना है, देन यस ऑब्वियसली आप लोग, हम लोग के पास वो डेटा है। आप लोग म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके ट्रैक रख सकते हो, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ट्रैक रख सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो कौन से स्टॉक्स के अंदर रुपए ऐड कर रहे हैं। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर उसकी स्कीम में जाके पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर म्यूचुअल फंड अपना पैसा ऐड करी है या विड्रॉ कर रही है। मोहम्मद शेख जी, एफपीआई मीन फॉरेन पोर्टफोलियो एक्टिविटी। सुजीत कुमार जी, एफपीआई सेक्टर एक्टिविटी इज फोर्टनाइटली बेसिस, इट इज अपडेटेड ऑन अ 15 डे बेसिस। एक्सचेंज क्या है, हर 15 डे पे ये डेटा अपडेट करती है, हर 15 डेज का डेटा प्रोवाइड करती है। तो अब जैसे 31 अगस्त हो जाएगा, देन 31 अगस्त के 2-3 दिन बाद ये डेटा अपडेट हो जाएगा, एंड दैट विल बी फ्रॉम 16 अगस्त टू 31 अगस्त। आनंद गुप्ता जी, आपको उस न्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो न्यूज टू न्यूज डिपेंड करेगा। मोहन जी, मैं इसको रिक्वेस्ट कंसिडर करूंगा, एंड आई विल बी गोइंग अ बिट स्लो। वरुण चौहान जी, बाईबैक का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक कोई एक्सवाइजेड कंपनी है, तो वो कंपनी क्या करती है, वो अपने बाईबैक इज अ मेथड ऑफ रिवॉर्डिंग टू इट शेयर होल्डर्स। कि अगर किसी कंपनी का प्राइस समझिए 800 रुपीज पे अभी चल रहा है, एंड कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो मार्केट में से कुछ शेयर्स को बाई बैक करती है। कि जैसे अगर आज उस कंपनी का जो 800 पे चल रही है, उसका मार्केट में 1 लाख शेयर्स अभी अवेलेबल है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी कि मैं एक बाईबैक लेके आ रही हूँ फॉर एक्स वाई जेड अमाउंट, जिसके अंदर मैं सारे फॉर 50,000 शेयर्स, मैं कंपनी की, मैं मार्केट ओपन मार्केट से मैं 1000 रुपीज पे बाईबैक करूंगी। मतलब आपने, फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो स्टॉक को 700 पे परचेज किया है, अगर वो स्टॉक अभी आज के दिन 800 चल रहा है, एंड कंपनी के अंदर अगर ये न्यूज आ गया कि कंपनी 1000 रुपीज पे बाईबैक करेगी, मतलब उसमें एक पीरियड होता है जिस पीरियड में आप कंपनी में वो अप्लाई कर सकते हो, तो कंपनी आपसे 1000 रुपीज देके आपसे वो आपके जो शेयर है उसको बाईबैक करेगी। तो कई बार क्या होता है कि वो फुल अलॉटमेंट होता है, कई बार होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है, कि कंपनी ने जितना शेयर बाईबैक का निकाला, उसके अंदर अब बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो आपके जितना शेयर है उसका कोई प्रो रेटा बेसिस पे आपसे वो कंपनी शेयर्स पे बाई कर लेती। तो आपका क्या हुआ, मार्केट में 800 चल रहा था, बट जस्ट बिकॉज कंपनी ने बाईबैक निकाला, तो आपको 1000 रुपीज पर शेयर पे आपका वो शेयर सेल हो गया बैक टू दी कंपनी, तो आपको उतना का प्रॉफिट आप मिल जाएगा। वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करना है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और डिलीवरी परसेंटेज एंड क्रेडिट परसेंटेज का मतलब है कि डिलीवरी परसेंटेजेस की, अगर डिलीवरी मेरे एवरेज से कितना ज्यादा है, एंड ट्रेडेड परसेंटेजेस मेरे वॉल्यूम से कितना ज्यादा है। ट्रेडेड क्वांटिटी इज द वॉल्यूम, एंड डिलीवरी परसेंटेज की कितने एक्चुअली उस स्टॉक से अंदर बाइंग हो रही है जो लोग अपने घर पे डीमैट में लेके जा रहे हैं। यस अशोक जी, वॉचलिस्ट के लिए लिमिट है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग माई वॉचलिस्ट के अंदर पार्ट है, आप लोग को कुछ नहीं करना है। आपको कितना आप लोग वॉचलिस्ट बना सकते हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यू कैन क्रिएट अ मैक्सिमम ऑफ 50 वॉच लिस्ट, एंड आप लोगों को यहाँ पे माई वॉचलिस्ट सेक्शन में जाना है, क्रिएट वॉचलिस्ट पे क्लिक करना है, आपको एक्स वाई जेड नेम देना है। जैसे टेस्ट 2 अगर मैं दे रहा हूँ, आपको ये ऐड करना है, एंड आपके वो टेस्ट 2 नाम से एक वॉचलिस्ट ऐड हो गया। यहाँ पे आके आपको इन स्टॉक्स पे, आपको जो भी स्टॉक्स ऐड करना है, आपको उसको स्टॉक को सर्च करना है। जैसे इन्फोसिस, मैंने इन्फोसिस सर्च किया, इन्फोसिस आ गया, मेरे को यहाँ पे स्टार मार्क करना है। स्टार मार्क करती ये स्टॉक यहाँ पे इस सेक्शन में ऐड हो जाएगा। वैसे अगर आपको और भी स्टॉक्स ऐड करना है, तो आप जितने स्टॉक्स आप चाहे ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 50 स्टॉक्स। आप मैक्सिमम ऑफ 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, तो कर सकते हो ना सिंगल वॉच लिस्ट। वरुण जी, मैंने अभी जस्ट बाईबैक एक्सप्लेन किया कि क्या कैसे होता है बाईबैक के अंदर। और नरेंद्र भाई जी, अगर डिलीवरी वॉल्यूम इज समथिंग एल्स, वॉल्यूम इज कि उस शेयर में कितना ट्रेडिंग हुआ शेयर्स का, एंड डिलीवरी हुई is कि उस जितना भी ट्रेडिंग हुआ, उस ट्रेडिंग के कैपेसिटी में कितने स्टॉक्स लोग एक्चुअली बाई करके अपने घर पे लेके जा रहे हैं, डिलीवरी में लेके जा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी ज्यादा होने से वो ग्रेजुअली
इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि पीपल आर एक्यूमुलेटिंग दैट स्टॉक, पीपल उसको बाई करे कंटिन्यूसली में। तो हो सकता है कि वो एक स्टॉक कंसोलिडेटिंग फेज में हो एंड उसके अंदर आगे जाके मूवमेंट आए। रश्मि जी मैंने अभी जस्ट रश्मि मैंने अभी जस्ट अभी दिखाया कि हम लोग स्टॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं वॉचेस के अंदर। और सुधांशु जी, ये जो एफपी एक्टिविटी फॉर डेली बेसिस ये अवेलेबल नहीं है, ये डेटा मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। एक्सचेंज इसको खाली 15 डेज के बेसिस पे ही अपलोड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है। Yes, we can create 50 watch list. Ashok ji, we can create 50 watch list, and in every watch list we can add 50 stocks. Yes, Kashi ji, we can check watch list stocks for combo scans as well. अगर आपको सेम टाइम पे पता करना है राजेश जी, देन आपको एक्सचेंज के वेबसाइट पे आपको उसको ट्रैक रखना पड़ेगा, बट वो डेटा जो एक्चुअल डेटा है वो मार्केट आज के बाद ही आता है, उसकी एक अलग ट्रेडिंग विंडो होती है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मार्केट की न्यूज में ही मिलेगा, एक्सचेंज पे ही आपको पता चलेगा। अनिल मिश्रा जी, आप एज रिपोर्ट जो सेक्शन है जो मैंने दिखाया, एज रिपोर्ट्स में जाके आप ट्रैक रख सकते हो। मैक्स मैक्स नंबर ऑफ वॉचेज इज 50। यस नरेंद्र भाई जी, हम लोग हर स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक के अंदर जाके शेयर होल्डिंग करके एक अलग से टैब है, अब उस स्टॉक का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन्फोसिस चेक किया, इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये रहा। तो आप हर स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा फॉर 9 लास्ट क्वार्टर आप ट्रैक रख सकते हो। और काशी जी, ऐसा नहीं कि डिलीवरी डिलीवरी जो होती है वो ईओडी डेट मतलब एंड ऑफ डे पे हम लोग को रिपोर्ट होती है। तो डिलीवरी डेटा चेंज नहीं होता, डिलीवरी जो है वो जो कंपनी एक्सचेंज रिपोर्ट करती है हम लोग वही करते हैं, उसके बाद फिर उसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं आती। और नो राजेश जी, प्री ओपन आर्काइव डेटा इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉकेज। और इब्राहिम जी, यस, आप लोग हर इंडिकेटर का स्टॉकेज में जितने भी इंडिकेटर्स है या आप जो भी आप इंडिकेटर्स का बात कर रहे हो, आप हर इंडिकेटर का आप उसका मतलब समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएसआर में हो, तो ये जो हर इंडिकेटर के पास में कि आई सेक्शन है, आप इस आई सेक्शन पे क्लिक करके हर उस इंडिकेटर का मतलब, उसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, उसका क्या मतलब है, एंड उसके जो वीडियोस है वीडियोस को देख के समझ सकते हो कि आपको उस इंडिकेटर से कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। सो चलिए अब हम लोग चलते हैं माई पोर्टफोलियोज की तरफ। सो ये मेरा एक डेमो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो ये दिस इज द समरी, एंड ये मैं मेरे सारे पोर्टफोलियोज है जो भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं को कोई भी पोर्टफोलियो ट्रैक रखना है तो मैं उसको कैसे करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पोर्टफोलियो के अंदर कोई जा रहा हूँ, या मैं आपको समरी के अंदर मैं ऑल स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर जा रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल आपके सारे पोर्टफोलियो आपने अपने पोर्टफोलियो को ऐड कर लिया या आपने ब्रोकर के थ्रू कनेक्ट कर लिया, तो ये हो गया पोर्टफोलियो, ये हो गया म्यूचुअल फंड्स। तो इसके थ्रू आप पोर्टफोलियोज के आपके जितने स्टॉक्स हैं आप उनको भी ट्रैक रख सकते हो कि उन पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर क्या एज इनसाइट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको वॉच लिस्ट में दिखाया, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। आपके पोर्टफोलियो को भी आपको एक्टिवली ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टॉक को बाई कर लिया लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए एंड आप बस उसको भूल गए। आपको ऑब्वियसली उसको ट्रैक रखना है कि उस स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव मूवमेंट तो नहीं आया, कि अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो हो सकता है आपको उसमें सेल करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव मूवमेंट आ गई तो आप हो सकता है आप उसके अंदर आप उसको और ऐड करो, आप उसमें पोजीशंस और ऐड करो। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर पोर्टफोलियोज एज वेल। तो इसलिए आप एड इनसाइट्स के थ्रू आप उस सारी आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कोई भी ऐसी न्यूज है उसका आप ट्रैक रख सकते हो, कुछ मेजर मूवमेंट है टेक्निकल या फंडामेंटल, आप उसको ट्रैक रख सकते हो। सेक्टर एलोकेशन, इससे आपको आपकी जो पोर्टफोलियो है उसका आपको सेक्टर कंपोजिशन आपको समझ में आता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल इस पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैं दिखाऊं स्पेसिफिक सेक्टर में, आयरन एंड स्टील एक सेक्टर है जिसमें 19% सबसे ज्यादा एलोकेशन है, फिर आईटी है। तो अगर आप लोगों को सेक्टर प्ले करना है कि आप लोग सेक्टर के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इवेंचुअली आप लोग अपने पोर्टफोलियोज पे एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफर्ड सेक्टर एलोकेशन। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट एक और क्या आता है कि कई बार होता है कि मेनी पीपल हैव लिमिटेड फंड्स, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, तो दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन ऑल स्टॉक्स ऑफ ऑल सेक्टर्स। तो वो लोग क्या करते हैं कि कई बार एक छोटा सा अमाउंट, एक इक्विवेलेंट अमाउंट वो लोग उसके रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। कई सारी ऐसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो म्यूचुअल फंड्स भी है आप उसके स्टॉक्स को भी ले सकते हो एंड इंक्लूड स्टॉक्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो।
तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल कंबाइंड पोर्टफोलियो का जो सेक्टर एलोकेशन है वो आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने जब म्यूचुअल फंड इंक्लूड नहीं किया था तब तक इट वाज आयरन एंड स्टील, बट जैसे ही मैंने म्यूचुअल फंड इंक्लूड किया तो सबसे बड़ा सेक्टर जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट है दैट इज 18.202, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो इससे आपको आपके पोर्टफोलियो का सेक्टर एलोकेशन भी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। सेम गोज विद मार्केट कैप एलोकेशन, कि आपको आपके पोर्टफोलियो का कितने स्मॉल कैप्स है, कितने लार्ज कैप है, कितने मिड कैप है, को उसका एक आइडिया में लग जाएगा कि इसमें कितना स्टॉक्स है, आपको वो भी आइडिया लग जाएगा कि आप कोई किसी भी एक सिंगल स्टॉक में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। राइट, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग बहुत सारे एक ही या दो स्टॉक के अंदर रुपए डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो आप उसको डाइवर्सिफाई भी कर पाओगे इवेंचुअली अकॉर्डिंगली, एंड उसके बेसिस पे आपको इनसाइट्स भी आपको मिल जाएगी। दिस इज द कंसोलिडेटेड होल्डिंग। कंसोलिडेटेड होल्डिंग के अंदर क्या हुआ कि ये मेरे कैश मार्केट एंड म्यूचुअल फंड सारे के सारे स्टॉक्स को कंबाइन करके उसका क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है, कितना रुपए इन्वेस्टेड है, उसके बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा आपको रिपोर्ट मिल जाता है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसमें आपकी कैश मार्केट में क्या होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड में क्या होल्डिंग है, ये आपको क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो अब डिलीवरीज के अंदर आपको आपके जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है उसके अंदर आपको सारे के सारे ये आपको ट्रेंड्स मिल जाएंगे। जैसे मुझे दिख रहा है कि एमएसपी स्टील एंड पावर के अंदर 23 अगस्त को अचानक से अंदर बहुत ज्यादा डिलीवरी आई है। राइट, तो मैं ऑब्वियसली इसको ट्रैक रख सकता हूँ कि ऐसा स्टॉक के अंदर क्या हुआ था जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा डिलीवरी आई है। सेम गोज भी टेक्निकल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स के टेक्निकल्स को भी पूरा टाइम ट्रैक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स अपने 52 वीक लो हाई पे ट्रैक रख रहे हैं या अपडेट हो रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास है एंड ऑल, एंड इवेंचुअली आप लोग उसको ट्रेड्स ले सकते हो और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हो। सेम गोज विद चार्ट पैटर्न्स, कौन सा आपके पोर्टफोलियो स्टॉक में चार्ट पैटर्न बन रहा है। कई बार होता है कि कोई बेरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको उसमें से एग्जिट करना है, या कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आप उसके अंदर और स्टॉक्स ऐड कर सकते हो इवेंचुअली। इसमें स्कैन्स आ गया, एज रिपोर्ट्स, न्यूज, जो मैंने अभी आप लोगों को वॉच लिस्ट में दिखाया वही सेम सारी चीज आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। पोर्टफोलियोज के अंदर अगर आपको, जैसे मैंने आप लोगों को अनाउंसमेंट बताया, तो ऐसी कोई आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसके अंदर कोई मेजर अनाउंसमेंट आया है, आप वो भी ट्रैक रख सकते हो। रादर देन ट्रैकिंग अनाउंसमेंट फॉर ऑल स्टॉक्स, अगर आपको खाली अपने पोर्टफोलियो या अपने वॉच लिस्ट पे ही स्टिक करना है, तब आप पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट पे भी ट्रैक रख सकते हो, जिससे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। दिस इज द कॉर्पोरेट एक्शन, कि अगर आपको लगता है कि आपके आपको अगर आपको डिविडेंड्स को ट्रैक रखना है तो आप कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू ट्रैक रख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स के अंदर, आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड्स या कोई कॉर्पोरेट एक्शन या बोनस स्प्लिट होने वाला है, या आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स का क्या रिजल्ट्स है, उन स्टॉक्स के अंदर कोई डील्स हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाता है मैनेज सेक्शन, जो आपको मैनेज करना है कि आपको किसी को डिलीट करना है, एडिट करना है, व्हाट्स एवर इट इज। तो दिस वाज अबाउट द पोर्टफोलियो सेक्शन। तो इन एंड ऑल, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो बात ये है कि अगर आपको किसी भी अ, अगर आपको मार्केट्स में एक्टिव रहना है, देन आप खाली मार्केट के अंदर नहीं बट मार्केट के बाद भी आपको एक्टिवली ही टाइम देना पड़ेगा टू ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर द मार्केट आज, ताकि आप अप टू डेट रहे। कि ऐसा नहीं हो कि आज रात को कोई आपकी कोई पोर्टफोलियो स्टॉक या वॉच स्टॉक के अंदर कोई बहुत मेजर न्यूज आई एंड वो आपसे मिस हो गई, एंड आप जब कल देख रहे हो कि अचानक से आपका जो आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक था वो पूरा का पूरा नीचे गिर गया, तो बहुत ज्यादा भाग गया। आप चाहो तो उसके अंदर आप सुबह पहले एंट्री लेके आप उसके अंदर एक अच्छे गेम्स पे आप एक्ट कर सकते हो। तो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, लेकिन ऑल एंड ऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बात यही है कि देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एंड मल्टीपल डेटा इवेंट्स जिसको आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू बी वेरी एक्टिव इन ट्रैकिंग द अपडेट्स ऑफ द मार्केट्स। भूपेश कुमार जी, कॉम्बो स्कैन्स का एक अलग से सेशन होता है, दैट इज दैट इवेंचुअली हैपेंस ऑन एवरी वेडनेसडे। देन वेडनेसडे की जो स्मार्ट सेशन है आप उसको प्लीज ज्वाइन करिए। उसमें मैं कॉम्बो स्कैन मैं ही इसको उस सेशंस को लूंगा, एंड उसमें मैं स्कैन्स के थ्रू कैसे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें एंड कॉम्बो स्कैन्स के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई इसको, कॉम्बो स्कैन्स कैसे यूज करके हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोग कॉम्बो स्कैन्स वेडनेसडे के सेशन को, जिनको भी स्कैन्स और कॉम्बो स्कैन्स को समझना है, आप लोग वेडनेसडे के सेशन को जरूर से ज्वाइन करें। लेकिन कुमार जी, आप लोग वो फीफा के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको फीफा की जो स्टॉक्स है वो आपको मिल जाएगी। या जो फीफा जो, इट इज FIPA और नॉट फीफा, इट इज FIPA। तो फीफा स्टॉक को लेके भी कॉम्बो स्कैन की हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन वेनेसडे, एंड वी कैन लुक इनटू इट। एंड फीफा के जो स्टॉक्स है उसका कॉम्बो स्कैन आप बना सकते हो, एंड आप लोग खुद भी ट्रैक कर सकते हो स्टॉकेज में कि विवेक सर की जो फीफा कॉम्बो स्कैनर उसके अंदर कैसे कैसे स्टॉक्स और कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं।
यस महेश जी, हम लोग म्यूचुअल फंड के हर स्कीम में कौन कौन सी स्टॉक्स होल्डिंग है वो आपको पता चलती है। आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके आप किसी भी स्कीम के अंदर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जाऊं, बंधन स्मॉल कैप फंड में, तो आप किसी भी हर स्कीम के यहाँ पे होल्डिंग करके टैब है, जिस होल्डिंग में आप डोमेस्टिक इक्विटी में आके चेक कर सकते हो कि कौन सी आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रही है, क्या परसेंटेज पे होल्ड कर रही है, कितनी क्वांटिटी होल्ड करी है, उनका मार्केट वैल्यू भी कैसे चेंज हो रहा है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। और या अगर आपको किसी स्टॉक को ट्रैक रखना है, फॉर एग्जांपल उस स्टॉक के अंदर कोई म्यूचुअल फंड होल्डिंग है कि नहीं है एंड उसमें क्या मूवमेंट है, आप उन सबको ट्रैक रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को इन्फोसिस में दिखाऊं, तो इन्फोसिस के अंदर ये जो एमएफ होल्डिंग टैब है, एमएफ होल्डिंग में जाके चेक कर सकते हो कि एज ऑन जुलाई ये हर मंथली बेसिस पे डेटा अपडेट होता है। तो एज ऑन जुलाई ये सारी वो स्कीम्स हैं जिनके अंदर ये इन सारी स्कीम्स ने इतना इतना क्वांटिटी में बाई करके रखा है। जैसे एसबीआई निफ्टी 50 ने 0.69% से इन्फोसिस के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है, 0.69% शेयर्स और ज्यादा बाई किए हैं, जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन इतना है। सो विजय पाल जी, ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट टीम को। अगर वो लोग कर पाए तो वो लोग श्योरली करेंगे, बट ये हम लोग का फिक्स टाइमिंग है, एवरी डे 6 to 7। और नरेंद्र भाई जी, एमएफ होल्डिंग हर दिन चेंज नहीं होता। ये जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, ये जो म्यूचुअल फंड जो एएमसीज होती है, वो लोग हर महीना पे, हर महीने के एंड पे डेटा अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगस्त का डेटा अगस्त के सितंबर के फर्स्ट वीक में या बाई 15th अपडेट होता है। तो जैसे जैसे जिस दिन एएमसीज अपना पोर्टफोलियो डेटा रिलीज करती है, उसके विद इन 24 आवर्स हम लोग भी ये डेटा अपडेट कर देते हैं। प्रवीण जी, यस, आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अगर आप क्लब मेंबर हैं तो आप सोशल स्टॉक है सोशल पे भी सर्च कर सकते हो कि आज का स्मार्ट सेशन का डेट डाल के आप सर्च कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और एल्स यू कैन चेक ऑन दी यूट्यूब लिंक। और काशी जी, आपका जो क्वेरी है, दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेरी कि आप कैसे टेक्निकल फंडामेंटल स्कैन के साथ आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई मतलब ट्रैक नहीं रख पा रहे हो। अगर आपकी ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, देन आप प्लीज सपोर्ट टीम को रीच आउट करो। दे विल रीच आउट टू मी एंड आई विल श्योरली लुक इनटू इट ऑन अ पर्सनल लेवल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई आई होप कि आप लोगों को ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो। एंड अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज रीच आउट टू दी स्टॉकेट सपोर्ट टीम। दे विल रीच आउट टू दी कंसर्न पर्सन एंड आपकी जितनी भी क्वेरीज है, विल मेक श्योर कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज एंड सारी इश्यूज आप लोग की हम लोग सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। और महेश कनगरिया जी, आपको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। अगर आप क्लब यूजर है तो आपको खाली सोशल में आप लोग को लॉग इन करना है। आप लोग को सोशल में लॉग इन करना है। आपको यहाँ पे चेक करना है स्मार्ट सेशंस। आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग सर्च करनी है। एंड रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग जैसी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और या आप यूट्यूब पे जा सकते हो एंड यूट्यूब के अंदर आप स्टॉकेट स्मार्ट सेशंस करके एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। अरुण घोष जी, आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आपको स्टॉकेज सर्च करना है। स्टॉकेज के अंदर आपको एक स्मार्ट सेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आप जिस डेट का आपको रिकॉर्डिंग चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यूजुअली वी अपलोड द रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स। देखिए, मनी कंट्रोल तो कोई ब्रोकर नहीं है। आप अपने ब्रोकर से डायरेक्टली पोर्टफोलियो स्टॉकेज में इंपोर्ट कर सकते हो। यस, इट इज अवेलेबल आफ्टर विद इन 24 आवर्स। और ये अगर वो भी नहीं, तो अगर आप लोग को स्मार्ट सेशन चाहिए तो अभी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग इस लर्न के अंदर जाके आप लोग यहाँ पे अभी हम लोग कुछ दिन में इसको और अपलोड करते रहेंगे। आप लोग यहाँ पे स्मार्ट सेशन में आके भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो जो भी आप लोग को रिकॉर्डिंग चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। अगर आपको और कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज डू रीच आउट टू द स्टॉक सपोर्ट टीम एंड हम लोग चेक करेंगे इसको। हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी जन्माष्टमी अगेन। थैंक यू सो मच।